नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेघालय कैबिनेट ने समग्र शिक्षा अभियान एसएसए स्कूल्स की रैशनलाइजेशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री और एमडीए के स्पोक्सपर्सन वाइलाटमी शिल्ला ने बताया कि चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा और एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मण रुम्बुई ने हाल ही में एसएसए टीचर्स से मुलाकात की थी। टीचर्स ने नई पे स्ट्रक्चर और स्कूल्स के रैशनलाइजेशन की मांग की थी। So today we from the government, so we have approved that to start the rationalization process. So what would be the financial implication regarding that? No, as of now, because the department is still working on that, I cannot give you the exact figure right now. Sir, you mentioned about something about special educator, regularization of special educator. No, this is actually, we are just actually the order from the Honorable Supreme Court, because there was a case, it seems that because we need to have a special educator. So for that, we are just, because right now we have 283 numbers of posts. So in this post, they are working as this contractual, and there are also to be recruited. So we are just regularizing to the approved from the cabinet for regularization of this post. And regarding this, कैबिनेट ने गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल GHADC के चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने का शेड्यूल भी अप्रूव कर दिया है। GHADC की इलेक्शन अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। Today the cabinet, because as you know, no doubt we have not decided the date yet, but the government has to start a preparatory step. So that's why today we in the cabinet we passed the schedule for the preparation of rule for the conduct of the election in Garo Hills. So like I already said, that the government has to were framed in 1951, and if the district councils have any opinion in terms of changing the rules, they are free to put forth through the process. There's a process involved, right? I don't think that has last time in both the Khasi and Jenke there were any issues as far as the role was concerned. Ultimately, people voted in large numbers, and there was no issue that was brought to our notice that people were missing in the rolls or whatever reason. Because, like I said, there's a process involved. The draft rule is published. After the draft rule is published, there's a period of filing of claims and objections. After that period, the final rule is published. So this process is very important, and the AD rules are there for the guidance of the deputy commissioners, and those process will be followed. तुरा की लोकसभा सांसद सलेंग ए संगमा ने कहा कि पूर्व मिनिस्टर मुकुल एम संगमा के कांग्रेस में वापस आने की संभावना नहीं है। उन्होंने मुकुल संगमा के छोटे भाई जेनेट एम संगमा का कांग्रेस में वापस आने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुकुल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो कभी कांग्रेस में वापस नहीं आएंगे। मीडिया ने भी उनका ये स्टैंड रिपोर्ट किया है। Assigned to me will be carried out heart and soul. So I don't know what kind of assignment will be given to me, and at this juncture I am not authorized to speak all the plans and programs of the party about the strategies that will be taken up by the party. So as and when time comes, you will get to know what are the strategies that we are taking on. AICC के सेक्रेटरी और मेघालय इंचार्ज ए छला कुमार ने कहा कि कांग्रेस के कई पूर्व नेता जो अब रूलिंग MDA या अन्य पार्टीज में है, ने पार्टी में वापस आने की इच्छा व्यक्त की है। brothers and sisters. Today is a great privilege for me to welcome our brother and our old family member,
with our family today. Our former Minister of Meghalaya, Mr. Salim Sarmaji, and also Sri Venu and the Reverend Sri Pastor Shanti. I wholeheartedly welcome you all to our family, the Communist Party. From today, each one of us, we are equally right, equal to all the fellow congressmen. Whatever reason you put in that we say and we left the Congress, there is not a time to discuss about all these things now. He was the former state union Congress president. He was the secretary of India Congress Committee. And he was a former minister in the we all know about his contribution to the Congress Party in the early days. The family, sometimes the family members, brothers, always there is a difference of opinion is to arise. Because of the small numbers or some small things, within the brothers we used to find each other. So it's a human psychology, it's a common thing. So some reason or other, at one point of time we left the Congress, but now we realize the importance of the डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट शिलोंग ने सौरा में 23 मई को हुए राजा रघुवंशी के हत्या केस में 5 मुख्य आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। विक्टिम के परिवार वकील सुजीत दे ने कहा कि सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ ट्यूसडे को चार्जेस फ्रेम किए गए। इस तरह पुरजी NSCN-IM चीफ और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड GPRN के ऑटो किलोन्सर थ्योंगलेंग मोइवा का वेंसडे को सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तहमजम पहुंचने पर बहुत ही भावुक और वीर स्वागत किया गया। अरुणाचल प्रदेश की तरफ डिस्ट्रिक्ट में शांति के प्रयासों को बढ़ावा देते हुए NSCN के निकीसुमी फैक्शन के एक हार्डकोर काड्रे SS लेफ्टिनेंट न्यामफुआ हकुन ने मंगलवार 28 अक्टूबर को असम राइफल्स के खोंसा बटालियन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकारी रिलीज के मुताबिक हकुन कई सालों से वसूली, रिक्रूटमेंट और इलीगल टैक्स कलेक्शन में शामिल था। ऑफिशियल्स के हिसाब से उसका सरेंडर असम राइफल के निरंतर आउटरीच और कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स का परिणाम है, जो एरिया में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने एक बड़े फायर क्रैकर स्मगलिंग ऑपरेशन का पर्दाफाश किया है।
नहावा शेवा पोर्ट पर 4.4 करोड़ के चाइनीज फायर क्रैकर्स जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत मुंबई जोनल यूनिट ने ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें इलीगल चाइनीज फायर क्रैकर्स भारत में स्मगल करने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने आज मिजोरम में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य व्यापी टोटल बैंड बुलाया है। ये बैंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 FCAA 2023 के विरोध में है, जिसे जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM लेड सरकार ने अपनाया है। MNF का कहना है कि ये बैंड सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, ताकि मिजोरम असेंबली में 27 अगस्त 2025 के रेजोल्यूशन को वापस लिया जा सके। कैसे 5 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया भारत में घुस आए और इंडियन सिटीजन्स बन गए, इस रिपोर्ट में देखिए पूरा खुलासा। भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जिसका नाम है हसमत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने सुजान शेख के नाम से बनाया, मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। कहाँ बनवाते थे? बंगाल में बनाया, अभी बेचने में आएंगे ना, पूछताछ होगी ना, तो आप समझ सकते हैं माता का नाम, पिता का नाम सब बदल दिया, मतलब कुछ आइडेंटिटी नहीं छोड़ी अपनी। एक आदमी इलीगल घूमता था, एक वीसा पे आता था, टूरिस्ट वीसा पे, आप देख सकते हैं टूरिस्ट वीसा के डिटेल्स है। वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को लगभग 250 वोटर ID कार्ड्स के साथ पकड़ा गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। चुनाव आयोग पूरे देश में फेजेस में इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन करने की तैयारी में है। এক ভবঘুরে ব্যক্তির কাছ থেকে শতাধিক ভোটার কার্ড, নদিয়ার কল্যাণী পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘটনা। ভবঘুরে ওই ব্যক্তিকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উদ্ধার হয় শয়ে শয়ে ভোটার কার্ড, যার মধ্যে রয়েছে 3টি ডিজিটাল ভোটার কার্ড। ডিজিটাল কার্ডগুলি আসামের, বাকি সব ভোটার কার্ডগুলি নদিয়ার কল্যাণী ও আশেপাশের এলাকার। নদিয়া জেলার কল্যাণী শহরের পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডে এক ভবঘুরে ব্যক্তি, তার কাছ থেকে শতাধিক ভোটার কার্ড উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে ডিজিটাল কার্ড রয়েছে আসামের ভোটার কার্ড, নদিয়ার আশেপাশে এলাকার ভোটার কার্ড উদ্ধার হয়েছে তার কাছ থেকে। খবর দেওয়া হয় কল্যাণী মহকুমা শাসকের দপ্তরে, SDOর কাছে খবর যায়। নদিয়ার কল্যাণীতে এই ঘটনায় পুলিশ তারপর ওই ভবঘুরে ব্যক্তিকে আটক করে, তার কাছ থেকে শতাধিক ভোটার কার্ড উদ্ধার, তার মধ্যে ডিজিটাল কার্ড অর্থাৎ অত্যাধুনিক ভোটার কার্ড রয়েছে, আসাম রাজ্যের ভোটার কার্ড রয়েছে নদিয়ার কল্যাণী এবং আশেপাশের ভোটার কার্ড, শয়ে শয়ে ভোটার কার্ড এক ভবঘুরে। आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। सुकमा छत्तीसगढ़ CRPF की 74वीं बटालियन के बहादुर K9 डॉग ईगो को आज डोरनपाल मुख्यालय में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।
नई दिल्ली। लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास हुए कथित एसिड अटैक मामले में आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने कहा, मेरे पति निर्दोष हैं। उस लड़की, उसके पिता और पूरे परिवार ने साजिश करके झूठा केस दर्ज कराया है। मैंने अकील खान के खिलाफ भलसवा थाने में शिकायत की थी। उसी से बचने के लिए उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल कर मेरे पति को फंसाया। जब कथित हमला हुआ, मेरे पति करोल बाग में ड्यूटी पर थे। तो उसी दौरान मैं अपने हस्बैंड जितेंद्र कुमार को कॉल किए कि ऐसे मतलब ऐसे बात है, आप कहाँ हैं? तो बोले हम ड्यूटी पे हैं। हम बोले आप वहीं पर रुकिए, अभी जैसे भी होंगे मैं बात करूंगी, आप सीधे थाने आ जाइएगा। उसके बाद फिर मैं अपने सर से बात की, मतलब वहाँ थाने विजिट कर रही थी, उसी समय अपने सर से बात की। फिर मेरे हस्बैंड 9:30 बजे वहाँ पर आए। उसके बाद जो है कि फिर अपना वहाँ पर मिले, अफसर लेके गए फिर वहाँ पे भरत नगर, ये संगम चौकी के पास। जी जी जी। तो उसके बाद वहाँ पर अपनी कार्रवाई की। फिर जहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर सारे कैमरा वगैरह विजिट की। उसके बाद निर्दोष साबित हो गए। उनके बाद तो पुलिस की कार्रवाई की गई, तो उस कार्रवाई में क्या कुछ रहा और अभी क्या निकल कर सामने आया है पुलिस की सामने कार्रवाई? ये आए सर कि मेरे पति निर्दोष हैं, वो फर्जरी केस किए थे। इस लड़की के बाप और लड़की मिलकर ये साजिश की थी उसके पूरे फैमिली। ऐसा क्या कुछ रहा था कि उन्होंने इस तरीके का जो इंसिडेंट है एसिड अटैक का वो करा, और इसमें अखिल नाम के व्यक्ति का आया जो लड़की के फादर थे, किस तरीके से आपको पता चला? इस तरह से कि सर की जो कि अकील खान है, उनके कंप्लेन में ये अपना भलसवाड़े के थाना में कंप्लेन की थी। तो उन्हें पता चले, उससे बचने के लिए अपनी लड़की का सहारा लेकर के मेरे पति के खिलाफ वो साजिश रचे थे। जिस समय ये अटैक था, ये मामला सामने आया, उस समय आपके पति कहाँ थे? उस समय मेरे पति ड्यूटी पे थे करोल बाग। ऐसे में दो नाम और भी हैं, ईशान और अरमान का। क्या आपके पति उनको जानते हैं क्या? नहीं जानते, उसे नहीं जानते मेरे husband। क्या पुलिस कार्रवाई को लेकर संतुष्ट? पुलिस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? संतुष्ट हैं क्या? जी संतुष्ट हैं। पुलिस मेरे पूरे सहायता की सारी चीज, लेकिन अब आगे ये मुझे चाहिए कि जो मतलब फर्जरी केस में मेरे हस्बैंड को फंसाना चाहते हैं, अब उनको करीब करीब सजा मिलनी चाहिए। और उस जो मतलब ये सारे रचना रचे थे मेरे हस्बैंड को फंसाने के लिए, उसको कानून के हवाले होना चाहिए। शिलोंग। प्रोजेक्ट एम्पथी द्वारा असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलोंग के सहयोग से आई एम विद यू शीर्षक से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन बुधवार को ऑल सेंट्स हॉल में किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मेघालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुमन सेन ने किया। कार्यक्रम में प्राचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और असम राइफल्स समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सहानुभूति को एक भावना और जीवन शैली के रूप में मनाना है, जिसे युवा कलाकारों की रचनात्मकता और कल्पना के माध्यम से Good evening, sir. Sir, our project I Am With You is more than an art exhibition. It is a collective expression of empathy, belonging, and shared humanity. Our project I Am With You is not just an exhibition to view, it is an invitation to feel, to pause, and to recognize the threads of connection that bind us all. And also through the artworks displayed here, the participants or creators are able to express शिलोंग। NEHU में आज भारतीय वनस्पति सोसाइटी के 48वें अखिल भारतीय वनस्पति सम्मेलन और जैव विविधता की जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जैव अर्थव्यवस्था विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत हुई। ये पहली बार है जब यह आयोजन पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है। इसका उद्घाटन मेघालय के राज्यपाल श्री चंद्रशेखर एच विजय शंकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। राज्यपाल ने एकल फसल प्रणाली मोनोकल्चर के खतरों पर चेताया और मेघालय की जैव विविधता की सराहना की। ये भी बताया कि राज्य का हल्दी उत्पादन देश में सर्वोच्च 8.9% करक्यूमिन कंटेंट के साथ अग्रणी है। ईटानगर। न्यूशी एलीट सोसाइटी NES और मिसिंग बामे केबांग MBK के बीच आज गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल में मित्रता संधि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पर हस्ताक्षर किए गए। NES अध्यक्ष प्रोफेसर ताना शोरन ने बताया कि ये संधि हाल की कुछ समस्याओं को सुलझाने और न्यूशी और मिसिंग समुदायों के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई चर्चाओं का परिणाम है। दोनों समुदाय अबो तानी के वंशज माने जाते हैं और ये समझौता आपसी समझ, सहयोग और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है।
साइड नोट इस इंडिया में पहली बार ये एक बहुत कंपोजिट एंड कम्प्रिहेंसिव जो डॉक्यूमेंट बना करके लीगली टेनेबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल, सोशली मैंडेटेड एक हम लोग डॉक्यूमेंट बना करके मंथ्स लॉन्ग का वर्कआउट करके हम लोग ये ट्रीटी बनाया है। खास करके ये दोनों समुदाय के बीच में जो फ्रेंडशिप है, कोऑर्डिनेशंस और बेनिफिट्स टू ईच अदर, शेयर जो इंटरेस्ट है, वैल्यूज़ है, कल्चरल हम लोग का जो एफिनिटीज को छोड़ के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जो ऑन गोइंग कंटेम्प्रेरी जो लैंड या टेरिटरी कहीं द इंटर स्टेट बाउंड्री में भी ये जो ट्रीटी बहुत ही मददगार होंगे, क्योंकि मिसिंग हम लोग का एक ब्रदर है, वो हम लोग का हर जो पुट हिल क्षेत्र में उन लोग बसा हुआ है, तो इसलिए उन लोग कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव इनपुट को जो ये मैटर को सलूशन करने के लिए ज़रूर उन लोग एक पॉजिटिव वाइब्स दे देंगे। और उनका ये आज का सिग्नेचरीज का बात वो एक अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल प्ले करेंगे एज एनजीओस, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, द पॉलिटिकल डिसीजन है और असम का मिसिंग कम्युनिटी जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मिसिंग कम्युनिटी का, उसके बीच में एक फ्रेंडशिप टीटी वो साइन हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। जो आबोतानी का जो 6 ब्रदर है, वो 6 ब्रदर में निसी और मिसिंग भी एक है, उनके बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ है। जो इसके पहले एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें हम लोग नेगेटिव से देख रहे हैं कि नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव था, उस पॉजिटिव था इसीलिए हम लोग का बीच में आज एक ट्रीटी हुआ है। तो उस ट्रीटी सिर्फ निसी कम्युनिटी और मिसिंग कम्युनिटी के बीच में ही नहीं, जो आबोतानी का 6 ब्रदर है, उस 6 ब्रदर को भी हम यूनाइट करने का एक रास्ता खुल गया है। तो हम इसके बाद में आगे जाएंगे और जो टनी ब्रदर जो है उसके बीच में हम किसी तरह के मन फिर यूनाइट होने के लिए हम किस तरह आगे बढ़ना होगा, उसका भी एक रास्ता खुल गया है। जहाँ डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ तो आबोतानी ब्रदर से तो आदि का साथ भी एक समझौता हो गया है और गालो का साथ भी कुछ हद तक हो गया है। तो अभी निसी का साथ में हमारा बातचीत होना चाहिए, और यहाँ निसी और मिसिंग जहाँ जहाँ है वहाँ भी थोड़ा डिस्प्यूट है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आज का वो जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के बाद में वो भी हमारा जो समस्या से जो डिस्प्यूट है हल निकाल जाएगा और बाउंड्री डिस्प्यूट का एक बहुत शांतिपूर्ण समाधान भी हो जाएगा। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा जब बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
मुख्यमंत्री हेमंत हेमा बिस्वा शर्मा ने श्रीभूमि जिले के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए, क्योंकि पार्टी बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान गाया गया था। In place of the national anthem of India. This is a blatant disrespect to the people of India, its national anthem, as well as it is in line with the new claim of various Bangladesh leading citizen that eventually Northeast will be part of Bangladesh. We see the recitation of national anthem by the Congress District Committee is somehow a endorsement of the claim of various Bangladeshi people and organ of the government that Northeast is their part and parcel. I have instructed Assam Police to register a case against the District Congress Committee of Sribhumi District and to take action as per the law. श्रीभूमि असम सरकार की जांच पर कांग्रेस नेता सतु रॉय ने कहा, हमने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति प्रेम में गाया था। बीजेपी देशद्रोह और देशभक्ति के अर्थ को बदलने की कोशिश कर रही है। দেশদ্রোহিতা দেশপ্রেম এই শব্দবন্ধ দুটির শব্দার্থই বদলে দিতে চাইছে বিজেপি এবং তার দলের নেতারা। তাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি হঠাৎ এই গানটা গাইলে কেন এই সভাতে। সে উত্তর দিয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথকে আমি ভালোবাসি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি এবং বিশেষ করে এই গানটির প্রতি আমার একটা স্পেশাল ফ্যাসিনেশন আছে। তাই সেই মুহূর্তে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে এই গানটি কোনো দেশের জাতীয় সঙ্গীত কিনা। আবেগের বশবর্তী হয়ে অথবা রবীন্দ্রনাথ প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যেই সেই গানটি গেয়েছিল। তো এটা যদি দেশদ্রোহিতা হয় বিজেপি মন্ত্রী এবং নেতাদের মতে, তাহলে এ ধরনের দেশদ্রোহিতা এই দল এবং এই দলের নেতারা প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ঘন্টায়, प्रतिदिन করে চলেছেন। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।